पैसा बोलता है। पैसा बोलता है। सह प्रायोजक GTM बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स और विशाल मेगामार्ट। नमस्कार, पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम कपूर। आज हमारे रेल मंत्री ने रेलवे का बजट पेश किया। विशेषज्ञों का मानना है कि लालू की रेल धड़ल्ले से चली, खूब तेज चली। आम जनता के लिए क्या घोषणाएं हुई, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे सहयोगी पुनीत बरेजा और एवी पाउलोस साहब, जो कि रिटायर्ड फाइनेंशियल कमिश्नर हैं रेलवे से। Mr. Paulos, starting from you, a quick reaction on Laluji's budget. From the short-term point of view and a midterm point of view, it is a good budget because it is now facing competition from airlines, roadways, and other modes of transport. To meet that competition, he has not only not increased the fares on freights, but he has also reduced some, effected some reduction in air-conditioned travel where the competition was most severe. पुनीत जी, आपका ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा बजट गिना जाएगा और जितने भी उदारीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसके अंदर, और जैसे कहा कि एयर के साथ कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर किरायों का सेकंड एसी में घटाया जाना एक बहुत ही स्वागत कदम कहा जाएगा आज की तारीख में। लेकिन ये बजट भी पॉलिटिकल गिमिक्स से, अपीजमेंट पॉलिसी से और वहीं पे दिखाना कि बिहार से संबंधित है, उससे अनछुआ नहीं रह पाया है। देखिए, ये तो पिछली बार भी बजट में क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये सिर्फ बिहार प्रदेश के लिए बजट है। इस बार भी आंकड़े ये कह रहे हैं कि लगभग 15 नई ट्रेन जो हैं बिहार के लिए चलाई गई हैं। एंड more on that, a super specialty hospital for railway people he has announced to build in Patna. That's altogether a different thing. But in totality, as Mr. Paulos said, that this budget is a progressive budget. This budget is a very good budget. Mr. Paulos, few of the points. One, on one hand, Laluji has not increased the freight. On other hand, as per the balance sheet of the railways, the income, the gross profit has increased by almost 11,000 crores. How this has happened? Now, this has happened because of the boom in the economy, development in the economy of the country, and also several innovative measures introduced by the railways. During the last 2 years, quite a number of reforms have been introduced. People have not known much about it. To attract some of the traffic which has gone to the roads or to the airlines, he has announced quite a number of concessions during the last 2 years, and the effect of that has come about now. I would say about 60% of the increase in the revenues of the railways was due to the boom in the economy, and about 40% because of the improvements or the innovations carried out by the railways. From the economic point of view, it has come out as a very good year of performance for the railways, and he is proposing to continue with the same for the next year also, with a lot more concessions for long distance traffic, for loyalty traffic, for new traffic to come to the railways. It's a very good effort by the railways. Right. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप भी हमारे इस रेल बजट की चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें। हमारा फ़ोन नंबर है 42155555। फ़ोन उठाइए और सीधा हमसे बात करें, पूछे अपने सवाल लालू जी की रेल के बारे में। अभी पुनीत जी ने कहा कि गिमिक्स की बात थी। मैं मिस्टर पाउलो से भी पूछूंगा कि आपको इस पूरे बजट में कुछ गिमिक्स नज़र आते हैं? देखिए, जैसे घोषणा की किसानों को छूट देने की किराए के अंदर, याद आता है जैसे देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे, वो भी किसानों की बात करते थे और किसानों के लिए उन्होंने कहा कि उनके पास जब कोई मिनिस्ट्री आई, टूरिज्म उनके पास आई, या तो उन्होंने कहा कि 5 स्टार्स के अंदर हम हाट बनाएंगे। आज कहाँ है वो हाट? तो ये शॉर्ट टर्म विजन के साथ जो गिमिक्स दिए जाते हैं और कोई मात्र अपीजमेंट के लिए, उनके अंदर वाइबिलिटी नहीं है या नहीं है, इसकी कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं होती है, तो ये मेरे ख्याल से ये ट्रिक्स काम भी नहीं करती हैं लॉन्ग टर्म तक। मिस्टर पाउलो, डू यू एग्री विद पुनीत? No, there are certain gimmickry items
and also appeasement for appeasing Like certain Garib business. Rath, like Garib Rath. गरीब रथ जिस प्रकार से your घोषणा है specialty in- hospital in Patna, Patna. 15 Can be trains good. for Patna. In a democracy with elective arrangements, a certain amount of populism is inevitable. Right. So long as it does not do any damage to the system, you have to wink at that. देखिए यहाँ जैसे मैंने कहा क्या उन्होंने कहा डैमेज अल्टीमेटली जिसके लिए अपीजमेंट जो कि वाइबल नहीं होता है वही वर्ग बाद में नाराज हो जाता है। ऐसा ही होता है कि जिसको आप जिसके लिए कोई सुविधा देना चाहते हैं और आप उससे ऐसा वायदा करते हैं जो कि वाइबल नहीं जो है, आप दे नहीं सकते। तो वो वर्ग ही आपसे रुष्ट हो जाता है इन लॉन्गर टर्म टू कम। No, the damaging effect, I will give you one example. Because of the political approach to these projects, over the past several years, a decade and a half, we have built up incomplete works costing about 48,000 crores of rupees, which will take another 40-50 years to complete them. Right. These are all pending as sanctioned works, giving false hopes to people. Many of them will not materialize. So this is one damage that you can do. But in this budget, he has announced one important thing. This is that freight corridor, dedicated freight corridor. Mr. Paulus, we'll talk about freight corridor in a moment. सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक ग्राफिक के माध्यम से समझा दें कि हमारे रेल मंत्री ने मोटा मोटी क्या घोषणाएं की हैं। अगर हम उसको दिखा सकें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं कि नो इंक्रीज इन पैसेंजर एंड फ्रेट फेयर्स, फर्स्ट क्लास एसी फेयर टू बी कट बाय ऑलमोस्ट 18%, सेकंड एसी फेयर्स डाउन बाय 10%, 50% कंसेशन फॉर फार्मर्स इन स्लीपर क्लास। इसी की बात कर रहे हैं हम कि ये हो सकता है गिमिक हो, और है भी। 50% कंसेशन फॉर हैंडीकैप्ड पीपल, 50% कंसेशन फॉर दोज ट्रेवलिंग फॉर ट्रीटमेंट, 55 न्यू ट्रेन्स बाय नेक्स्ट फिस्कल। इसमें वो 15 ट्रेन्स का आंकड़ा मौजूद है जो कि सिर्फ बिहार के लिए चलाई गई हैं। प्राइवेट कंटेनर ट्रेन्स फ्रॉम मार्च 21, इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद है डीजल पेट्रोल फ्रेट रेट्स डाउन बाय ऑलमोस्ट 8%। गरीब रथ, एक और गिमिक, on pilot basis for 4 trains, Garib Rath will be fully air conditioned. एक और gimmick, Garib Rath fare will be 25% less than AC 3 tier. Dedicated freight corridor on western and eastern corridor routes. अभी इस पे चर्चा करेंगे। Dedicated freight corridor to cost almost 22,000 crore. बहुत बड़ी योजना के और अंकित कर रहे हैं रेल मंत्री। स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फॉर वुमेन ऑन ट्रेन, हर साल यही बात होती है, हर साल यही घोषणा होती है। 4 पॉपुलर ट्रेन्स टू हैव वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज एंड इंटीरियर्स। सिर्फ 4 ही में क्यों, ज्यादा में क्यों नहीं। ई टिकट्स चार्जेस टू बी रिड्यूस्ड, ये एक अच्छा पॉइंट लगता है। न्यू एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील वैगन्स, 550 kilometers of new lines in 8 sections, up to 30% fare discount during non-peak seasons. यहाँ पर एयरलाइन से compete करने की कोशिश की गई है। 20% freight discount in peak season on incremental freight. 200 automatic ticket vending machines in Mumbai suburb. अपने स्टेशंस को और ज़्यादा बेहतर और सुविधाओं से लैस बनाने की कोशिश। जन साधारण टिकट बुकिंग स्कीम, प्रीपेड यूटीएफ काउंटर्स टू अनएम्प्लॉयड यूथ, और ग्रामीण टिकट बुकिंग सर्विस, रोड साइड स्टेशन एजेंसीज टू सेल रेलवे टिकट्स, रेलवे टू रेज आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव्स बाय 20%। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू बूस्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ बात है कि दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें तो रेलवे का उद्धार हो सकता है। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मॉडर्नाइज टू स्ट्रेंथन पैसेंजर सिक्योरिटी इन ट्रेन्स, और आरपीएफ एस्कॉर्ट पार्टीज टू कवर 1000 पैसेंजर ट्रेन्स एवरी डे, बहुत बड़ा कदम। स्टेप्स टू श्रिंक क्यूज एट बुकिंग काउंटर्स, ये लगता है कि ये कुछ राहत देगा उन लोगों को जो कि लंबी लंबी लाइंस में लगते हैं टिकट्स लेने के लिए। न्यू टेक्नोलॉजी, एलएचबी डिजाइन पैसेंजर कोचेज, नई टेक्नोलॉजी लाने की बात है पैसेंजर कोचेज के लिए। वापस चलते हैं मिस्टर पॉलोस। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रूट्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर टू कॉस्ट 22,000 crores. This will be for over a period of 7 years, Okay. 7 years or so. The idea here is at present passenger trains and goods trains go on the same track. Passenger trains get priority, goods trains get left behind. So freight cannot be carried expeditiously to any given timetable. So by separating the two, it will give a tremendous advantage to carry the freight traffic. Okay. With the development of the economy,
your need for the capacity for freight traffic needs to be increased tremendously. This is one sure method of increasing the capacity. And because the almost a two-third earnings of railways come from freight. From the freight traffic. Freight traffic. So he plans to strengthen these corridors, and those corridors will be exclusively for freight traffic. Passenger trains will not run on those. Because passenger trains are fast moving and freight goods trains are slow moving. So in order to avoid the timings and delays, today the passenger train gets precedence over the freight train. Yes. So to allow the passenger train to pass, you will have to sacrifice the goods train. It is pushed into the siding and kept there. पुनीत जी, देखिए ये एक बहुत स्वागत का कदम है। ये स्पेशल जो कॉरिडोर्स फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, इसी के अंदर मोर एंड मोर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेजमेंट मिलेगी। तो इसके चलते जैसा कि हम समझते हैं अर्थव्यवस्था को, और हम आर्थिक ढांचे की जब बात करते हैं तो इसको विशेष बल मिलने वाला है, ऐसा हमारा मानना है। Mr. Paulos, Mr. Minister said the private partnership in running freight trains. What he means by No, this? actually, I will give you a concrete example. Till now, the CONCOR, Container Corporation of India, had the monopoly of carrying container traffic. That has been opened up. It is opened up to the public, and 25 parties express interest. 14 have actually put in the offers, and he has promised that by 21st of March, the licenses will be given to them. The idea is they will collect the traffic, load them into containers and bring to the railhead. Railways will do the operation. Running of the trains will be done by the railways. Okay. So railways will get the carrying charge. Charges for transportation. All the other charges they will go to the party wanting to run the train. So it is a sharing between public and private. Number two, the parties wanting to have container train facilities, they will have to find their own containers, they will have to find their own flats for carrying the containers, etc. So investment is also shared between the railways and the private parties. Railways providing the fixed structure of track, engines, the others providing the wagons and the flats for carrying the container. So it is private public participation. Actually, railways have falling short for giving satisfaction to the person who wants to send the goods. Do you think it will help? It will help. It will help tremendously. Mr. Paulos, we have a caller. हमारे साथ एक कॉलर हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हम सर आपसे ये पूछना चाहते हैं जी कि रेलवे जो हम इतने पैसे खर्च करके टिकट बनाते हैं जी, जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। उस पर किस किस्म की दिक्कत की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, जैसे हम जाते हैं वहाँ पे टिकट बनाते, रिजर्वेशन बनाते हैं तो हमें उतना सुविधा नहीं मिलते हैं। वहाँ जाते हैं, हमको एक सीट का पैसा लेते हैं वो। और दूसरी बात यह है कि उसमें 40 सीटें होते हैं, जैसे 100 सीटें होते हैं, आदमी उसमें कम से कम 100 भरे रहते हैं। जी, हम आपका सवाल समझ गए हैं। हम कोशिश करते हैं मिस्टर पालोस से इसका जवाब जानने की। मिस्टर पालोस, ही इज टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज एंड सेकंड द करप्शन। Corruption in terms of he said 40 seats or 47 seats, but people are 100. No, he was talking about the unreserved coach. Yes. If it is an unreserved coach, I mean, you can only take up to the capacity. If you are prepared to offer money and somebody is prepared to take money, it's very difficult. He must complain, lodge a complaint straight away to the railway authorities there, who can take it up. Corruption is not one-sided. Corruption is two-sided. If you offer, the giver and the taker both should be punished. He was also talking about the basic facilities. We'll come back, Puneet ji, we'll come back. हम जल्दी से वापस आएंगे एक छोटा सा ब्रेक लेकर। चर्चा जारी है लालू की रेल के ऊपर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अच्छे डिबेटर या वक्ता मेरे सेल नंबर्स 9818319418। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैसा बोलता है। मैं हमारी खास चर्चा रेल बजट के ऊपर। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी पुनीत बरेजा और हमारे गेस्ट एवी पाउलोस साहब, जो कि रिटायर्ड फाइनेंशियल कमिश्नर हैं रेलवेज़ के। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जैसे कॉलर ने पूछा सहूलियतों की, फैसिलिटीज़ की। आज भी लगभग 50-55 वर्ष हो चुके हैं भारत को आज़ाद हुए। हर बजट में चर्चा होती है, हर बजट में प्रावधान रखे जाते हैं फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने की। हम ये नहीं कह रहे कि फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ नहीं हुई है, लेकिन उतने पैमाने पर इंक्रीज़ नहीं हुई है जितने पैमाने पर पैसेंजर्स बढ़े हैं। आपका रिएक्शन? देखिए, इसके थोड़े से मूल भावना को समझना बहुत ज़रूरी है। आज अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी जगह पे अगर वी वांट टू बी सर्विस ओरिएंटेड, तो उसके अंदर हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि आकाश से रेल को कॉम्पिटिटिवनेस फील हुई है। तो ये भावना सर्विस को लेकर के भी उसके अंदर आनी चाहिए। आज हमारे पास रेलवे बीइंग लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड 18 लाख और सो 18 लाख से अराउंड हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन कहा यह जाता है, जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मैकेंजी ने भी रिपोर्ट में अपने सबमिट किया, कि अगर हम सही ट्रू कॉम्पिटिटिवनेस और सर्विस ओरिएंटेशन के साथ चलें तो ओनली 7 लाख पीपल आर एनफ to run this kind of infrastructure. Is it so, Mr. Paulus? In our own internal study, he had brought out that 30% overstaffing is there. बट मैकेंजी का कहना यह है कि देखिए मोर देन दैट। और एक रोचक तथ्य और भी है, वो ये कहते हैं कि 2027 तक हम लोग इतनी पेंशन में चले जाएंगे कि जितना ग्रॉस रेवेन्यू होगा विल बी इक्विवेलेंट टू द व्हाट विल बी पेइंग एज पेंशंस टू द स्टाफ। तो ये एक चौंकाने वाले तथ्य भी हैं इसके अंदर। ये सब देखिए रिलेटिव फैक्ट्स हैं। जितना हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को एनकरेज करेंगे उतना दे विल हैव टू नीड टू हायर लेस पीपल, और उसके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगी और इसको अरीना को खुला करने से अपने अंदर क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। You mentioned about pension. Pension bill is more than 7,800 crores for the next year. Pension alone on the Indian Railways, 7,800 crores or so. So Now, this means it's a word of caution for the railways. Actual earning. If you deduct the 7,800 crores from 11,900, so actual earning is that? No, it's after that. और उसका भी जैसे पहले इन्होंने सबसे पहले आप लोगों ने प्रश्न किया, ये कोई रेलवे को विशेष कोई रेलवे की नई योजनाओं के कारण ऐसा कोई प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है, बिकॉज इंडस्ट्री वाज बूमिंग और उनकी डिपेंडेंसी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड होने की वजह से रेलवेज के अंदर यदि इसका भी कोई विकल्प होता, ट्रांसपोर्टेशन हमारी रोड्स और वो उसकी तुलना में ज्यादा हो गई होती, तब आप देखिए कि क्या स्वस्थ बिना प्रतिस्पर्धा के देखिए आप किस प्रकार से आकलन कर सकते हैं कि हमने कितना अच्छा काम किया। If the total pension bill would have exceeded the salary bill, wages bill, but for a change brought about last year, from 2004, 1st January 2004 or 2005, a new pension scheme has been introduced. Instead of defined benefit, it is defined contribution. In the existing system, you get half the minimum of the half the pay last drawn as pension, irrespective of the date on which you retired. So this continues. Every time a pay commission comes, there is an upward revision of the pensions. So this has created all this damage, 7,000 crores and 7,800 crores. But new employees from 1st April, the government's contributions limited.
they pay 10% of the contribution, employees pays, and it is taken into a pension fund. So it is now a halt has been made. This will now reduce as the people waste out. Mr. Paulus, we were talking about the facilities year after year. From past 55 years, every rail minister announces facilities will be improved, facilities will be improved, we are doing this, we are doing that. We are not saying that it has not been done till today, but not as much as it is required. No, as you have mentioned, facilities have been improved. Yes. Now, earlier you had only wooden benches. Now you have cushioned benches. Even in third sleeper you have cushioned benches. Then you have arrangements of water supply. You have station also facilities have been improved, but the expectations are also higher than what it should be. But you are forgetting one thing. Yeah. All the facilities can be provided if we had the money to do that. Year after year, if you say passenger fares will not be affected, and the cost of running the passenger trains is going beyond your control, what do? There should be money for providing facilities. The loss on passenger services even today is about 5,000 crores, which is being cross subsidized by the freight traffic. By the freight traffic, right. So you can provide facilities to the extent possible. Facilities are being provided. So if you expect something, you be prepared for that. And I am glad in many of the commentators today, the reactions from Bombay, Delhi, Patna, everywhere, which I got from another studio, they said we are prepared to pay. Please increase the facilities. Please increase it. Exactly. We एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं. नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. हमें सर ये पूछनी है कि इतनी रेल बढ़ने के बावजूद भी हमें इतनी ट्रैफिक, इतनी परेशानी होती है जाने में, इसके लिए क्या किया जाए? 2 महीने पहले से टिकट बुक करनी पड़ती है. देखिए, उसी पर हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं, हम सुविधाओं पर चर्चा कर रहे हैं. हमारे पालोस साहब का मानना यह है कि पिछले वर्षों में सुविधाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ पाई हैं जितनी में बढ़नी चाहिए. उसका एक मोटा कारण ये बताते हैं कि पैसेंजर फैसिलिटीज के ऊपर लगभग 5,000 करोड़ का घाटा रेलवेज को हर साल होता है, जिसकी जो पूर्ति है वो फ्रेट के जो हमारी आमदनी है उससे की जाती है. हर साल इस पर घोषणाएं होती हैं कि फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी. रेलवे मंत्रालय उस पर काम भी कर रहा है और यकीन मानिए कि आगे आने वाले दिनों में देखेंगे आप. पिछले 55 साल में आपने देखा किस तरह से रेलवे में इंप्रूवमेंट हुई है और आगे आने वाले दिनों में इससे कोई बचाव नहीं है. रेलवेज को फैसिलिटीज में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी क्योंकि अब उसके सामने एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर तैयार हो चुका है. आज रेलवे मिनिस्टर ने एक बात कही अपने भाषण में, दैट रेलवेज इज कंपीटिंग विद एयरलाइंस. अगर इस स्तर पर रेलवे मिनिस्टर घोषणा करते हैं तो इसका मतलब आगे आने वाले समय में जो आपकी सहूलियतें हैं वो बढ़ने वाली हैं. राइट मिस्टर? राइट. जैसे मैंने कहा कि अभी आपने जैसे घोषणा पे शाबाशी दे डाली लालू जी को. देखिए, भारतवर्ष में बुद्धिजीवियों की और प्लान्स बनाने वालों की तो शायद कभी भी कोई कमी नहीं रही है. वो जमीनी स्तर पर, जमीनी सतह पर उनमें से इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो पाएगी या कितनी हो रही है. और अगर आप इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो हमारे को रेल्स के अंदर सर्विस की ही तो दरकार है. सर्विस जितनी ज्यादा होगी. एक और कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं. नमस्कार, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल. हाँ जी, मैं भोपाल से BS राजपूत बोल रहा हूँ. जी राजपूत साहब. मैं सर्विस में हूँ जी. और मैं सबसे पहले तो लालू जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बहुत अच्छा बजट पेश किए हैं जी. और मेरे ख्याल से ये जो भारत के पब्लिक हैं, छोटे से लेकर बड़े जो जनता कहलाते हैं, सबको बहुत अच्छा, जब से वो रेल मंत्री बने हैं तब से बहुत अच्छा वो मतलब एक फैसिलिटी दिए हैं जो भाड़ा में बढ़ाते नहीं. तो मतलब आप भी लालू जी को प्रधानमंत्री की तरह शाबाशी देना चाहेंगे? नहीं सर, मैं तो उसका वास्तव में जो पहले उनके कुछ कांड थे ना, मैं सोचता हूँ उसको भूल जाना चाहिए लोगों को. इतना अच्छा काम किया और राजनीति से कोई उसका लेना देना नहीं. जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मंच से लालू जी को बधाई दी. मिस्टर पॉलोस, इंस्टेंटली आई जस्ट रिमेंबर अ कुल्लड़ फैक्टर 2 years back. We still know it as a Kullard factor. Is it working today? I think that there is no emphasis on that. Right in the beginning, there was some
hoo-ha about it. After that, everybody seems to have forgotten. But he has reminded everybody by holding a cooler yesterday. Yesterday in his press conference or somewhere, I saw him drinking from a cooler. I think that was just. I don't think anybody took very serious notice of it. देखिए मैंने जैसे कहा कि ये जो गिमिक किए जाते हैं, इसके दौरान आप समझ सकते हैं कि कितने कुम्हारों को, कितनों को वायदे किए गए होंगे कि आप लोग ऐसी चीज बनाएं, हम आपसे ले लेंगे। तो कितनों को आप ये तो देखते हैं कि गिमिक करने से जो वायदे करते हैं और आप उस समाज से, वर्ग से जो निभा नहीं पाते हैं, उसका काउंटर इफेक्ट होता है। आप ये काउंटर प्रोडक्टिव चीजों को तैयार करते हैं। और दूसरा, आप इस तरह के गिमिक करने से जो जितना स्टाफ है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, उसका ध्यान आकृष्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों की तरफ, जैसे कि आपने कहा टिकटों को देना, उनको देखना, समझना। इनसे जो हमारे मूल उद्देश्य हैं, उनसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट डेविएट होती है। हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हैं, उनकी तरफ ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। समय खत्म हो रहा है मिस्टर पॉलोस। 550 राइट। I am a firm believer that the populism doesn't work. It does not turn into votes. It does not turn into votes. And it also doesn't work Counterproductive. after a particular point of time also. My analysis is a quick reaction on 550 kilometers of new lines in 8 sections. See, this so many pending projects are there. If we complete them, it will be more than 550. What are we talking about? China has been adding more than 1,000 kilometers every year, and they have overtaken us. What have we done in 50 years? I mean, don't It's okay. One more thing. आज लालू की रेल कैसी चली मिस्टर पॉलोस? तेज चलते हैं। तेज चली आज। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने इस चर्चा में भाग ली। मिस्टर पॉलोस का भी मानना है कि लालू की रेल आज बहुत तेज चली, धड़ल्ले से चली। जैसा कि हमने कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही बोला था, जनता के लिए अच्छी घोषणाएं की हैं, वो घोषणाएं कितनी पूरी होती हैं ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। हम कल फिर मिलेंगे 5 बजे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।